है हमारी अंदर की बुरी आदतों पर अच्छी आदतों की जीत। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। हे राम हे राम। तो आइए देखते हैं कक्षा चौथी स के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना नृत्य। सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता opportunity to invite our honorable principal, who is the guiding light of this institution. Please welcome our beloved principal, Thampi Alex. Good morning, everyone. Please accept very warm greetings to all of you from me for this festive season. Dear students, today I am here to share my happiness with you and also tell you the significance of the festival, both religious as well as spiritual. As you all know that we are celebrating the Dussehra today, and this festival is commemorating the triumph of good over evil. The story behind this celebration of the Dussehra will be enacted or explained by my dear students of classes 4th, 7th and 11th C and D. For many, it might seem to be a simple story of a prince rescuing his wife from a demon king. But it was not simple at all. There are several inspiring facts about Lord Rama's personal life and his fight with Ravana. Lord Ram was a powerful prince, the obvious heir to the kingdom of Ayodhya. But he was also a man with a high level of morality in thoughts and conduct. He happily left his throne for his younger brother Bharat and went on 14 years of exile in the forest. The ease with which he rejected his comforts and accepted hardship is an inspiration for all of us. Moreover, Lord Ram could have assembled the best army to fight against Ravana, but he rather chose to make an army of local tribes and his well-wishers. This teaches that, however powerful evil may be, it is truth and righteousness that emerges victorious at the end. Hence, we celebrate the Dussehra with the same spirit of righteousness, commemorating the triumph of truth over evil. This is the reason why the effigies of Ravana are burned in every corner and street of the country. It is symbolic of the victory of good over bad. In spite of wealth, strength, power, and blessings from God Shiva, Ravan was killed by Lord Ram because for good to prevail in the society, evil had to die. Apart from the fact that victory of good over evil is the main lesson from the Dussehra, it also teaches us many other things. The festival teaches
to be fearless as long as we are right and have not committed any wrong. If you have conducted yourself as per your moral values, then you should not fear anything, however formidable the opponents may be. The good thing about the festival of Dussehra is that the message it gives is not only for a particular religion but also for other religions as well. It also teaches to be nice and considerate towards those who are weaker than us, as Lord Rama was to others. It also teaches that we must never underestimate someone else and overestimate ourselves, and should always act according to the moral values. My dear students, it's a day to celebrate and learn. Celebrate the victory and learn the lesson that it entails. For me, the happiness is double. First, the festival of Dussehra itself, and secondly, is the fact that it also announces the arrival of Diwali 20 days later. I take this opportunity to thank and congratulate in advance the students of classes 4th, 7th and 11th C and D and their class teachers that in spite of this pandemic time, they have managed to prepare this program for all of us. Best wishes, dear students and teachers. Once again, I wish a very warm Dussehra greetings to all my Montfortians, teachers and dear parents. Hope that you will enjoy the festival with great wisdom and religiosity. Thank you. God bless you all. On behalf of one and all, I would like to thank you, brother, for inspiring us always with your motivational words. Thank you once again, brother. Dussehra is the most popular Hindu festival which is celebrated for 10 days. Let us understand the true meaning of this festival by chanting first, Jai Shri Ram. Dussehra is a Hindu festival which commemorates the victory of Lord Ram over evil King Ravana. It also marks the victory of goddess Durga over Mahishasur to protect the world from his cruelty. The 10 days long festival, also known as Navratras, honors and celebrates the 9 forms of goddess Durga or incarnation and ends with Dussehra on the 10th day. Many people, it is a time of religious reflection and fasting, and for many others, dancing and feasting. We can see how people all over celebrate this festival with immense enthusiasm, pomp and show. The different cultures do not affect the celebration of this festival. People of all ages enjoy the festival by witnessing the fireworks and are left mesmerized by the stunning visuals. Kids wait for the most for this event and insist on their parents to take them to the carnival, when people in their best attires come together to celebrate this festival. Victory is the key of happiness, but the best way to express it dance your heart out. So here are Kavya, Hashvi, Taisha and Arina expressing their happiness on this eventful day. देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए।
तेरा मुझे कब था पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा मुझे कब थी खबर किसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी तेरी मेरी एक भी पल हो भी नहीं दूरी माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है रामलीला। 10 दिनों के उत्साह में मंच पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान कलाकार तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं। वातावरण में इन दिनों उत्साह और उत्सव का आभास होता है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाकर सच्चाई की प्रचंड शक्ति को दर्शाया जाता है। होती जीत सत्य की और असत्य की हार, यही संदेश देता है दशहरा का त्योहार। सुप्रभात, हम कक्षा चौथी डी के छात्रा आपके सामने रामायण के कुछ दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ हम सभी राम बने, रखे मर्यादा और मान, सत्य और सत्क्रम से जीले सारा जान। बोलो सियापति रामचंद्र की राम और सीता के विवाह के पूर्व राजा दशरथ अपनी बड़ी बेटी राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। तब राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उनसे वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बैठाने की बात की। राजा दशरथ ने भारी मन से राम को जाने की सहमति दी। जी ने अपने माता पिता का बिना विरोध किए आदेश स्वीकार किया और वन को अपने जीवन का एक कल्याण रूपी अवसर माना। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने वन की ओर प्रस्थान किया। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अरे बहन, क्या हुआ? तुम्हारी नाक किसने काटी? भैया, मेरी नाक तलवार से काट दी गई है। यह मेरी नाक नहीं, बल्कि लंकेश्वर महाराज की नाक काटी गई है। ये सब किसने किया? यह सब एक अलौकिक मानव ने किया है। उसका छोटा भाई भी साथ है और एक सुंदर स्त्री भी साथ है। मैं तो बस उस स्त्री को आपके इस महल में लाना चाहती थी और इसी कारण दोनों भाइयों ने मेरी यह दशा कर दी। इन दो मानव जीवों ने अपनी मृत्यु को ललकारा है। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अभिमानी रावण क्रोधित होकर सीता का अपहरण करने की योजना बनाता है। ये कुटिया में जा उससे सहायता मांगता है। रावण की आज्ञा का पालन करते हुए मरीच एक सुंदर हिरण का रूप लेता है। आर्यपुत्र, लक्ष्मण, लक्ष्मण, आइए देखिए एक अद्भुत दृश्य। वो वहाँ एक अनोखा हिरण। सचमुच अद्भुत है। प्रभु, ये मन भावन मृग मेरे लिए पकड़ लाइए
होगा। मैंने यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जो भी इसके पार जाएगा वो जल जाएगा। रावण अपनी नीति अनुसार भेष बदल कर आता है और छल से सीता का अपहरण कर लेता है। सीता लंका मार्ग दर्शाने के लिए अपने आभूषणों की निशान छोड़ती है। रावण के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाओ, बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, स्वामी बचाओ। लक्ष्मण राम के साथ मिल सीता को ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें घायल जटायु मिलते हैं और उन्हें सीता के अपहरण की सूचना देते हैं। वहीं रावण सीता को अशोक वाटिका में भेज देता है। अहंकारी पापी, यह तुमने बहुत गलत किया है। तुमने अपनी भक्ति को कलंकित कर दिया है। वो राम मेरा कुछ नहीं कर सकता। सीते, लंका की रानी तो तुम ही बनोगी। सीता को ढूंढने के प्रयास में राम का सामना कबंध से होता है, जो उन्हें सुग्रीव से मिलने को कहते हैं। वानर सेना को राम और लक्ष्मण के आगमन का कारण समझ न आया। इसीलिए हनुमान राम और लक्ष्मण की पहचान की पुष्टि करने के लिए वेश बदल कर आते हैं। वे राम को पहचान लेते हैं और उन्हें सुग्रीव से मिलाने ले जाते हैं। सुग्रीव राम लक्ष्मण से मिलके अति प्रसन्न हुए और राम जी को सीता द्वारा पोटली में फेंके हुए आभूषण दिखाए। ये तो सीते के आभूषण है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही आऊंगा। किष्किंधा का वानर दल सीता की खोज में जुट जाता है। हनुमान तपस्विनी से मिलते हैं और उनके मार्गदर्शन से महासागर तट तक पहुंच जाते हैं। हनुमान जी उड़ते हुए राक्षसों से लड़ते हुए लंका तक का सफर तय करते हैं। आइए देखें वे आगे का सफर कैसे तय करते हैं। कब आएंगे मेरे स्वामी? कहाँ है मेरे स्वामी? ये कौन लाया यहाँ? ये तो मेरे स्वामी की निशानी है। ये संदेश कौन लाया यहाँ? मैं लाया हूँ माँ। माता मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूँ। माता मुझ पर शंका न करे। यह मेरा सचमुच का रूप है। मैं एक वानर हूँ। मुझ पर विश्वास करो माता। यह मुद्रिका प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है। ये केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को दी थी। मुझ पर संदेह न करें माता, आप मेरे साथ चलिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी स्वयं आएंगे तभी मैं चलूंगी। जो आज्ञा माता। जैसे ही प्रभु को पता चलेगा आप लंका में सकुशल हैं, उन्हें यहाँ पहुँचने में अब देर नहीं लगेगी। पल पल है भारी वो विपदा है आई।
बुराई की हो हार, अच्छाई की हो जीत। बुराई की हो हार, अच्छाई की हो जीत। दशहरा आया आहा, हमें सिखाया। दशहरा आया आहा, हमें सिखाया। रावण ने सीता थी चुराई, उसकी सजा सुनो कैसे पाई। रावण ने सीता थी चुराई, उसकी सजा सुनो कैसे पाई। बुराई की हो हार, अच्छाई की हो जीत। Known by different names across India. Durga Puja in East and Northeast, Vijayadashmi in South India, and Dussehra in Northern states. Kullu's Dussehra in Himachal Pradesh is quite famous for its celebration. The valley's Dhalpur Maidan is beautifully decorated with flowers and lights. Cultural performances, fairs, exhibitions are spread across the Maidan. They further add to excitement. Dance is the hidden language of the soul. Dandiya Ras is a traditional folk dance. It is performed in honor of goddess Durga. The sticks represent the sword of Durga. Hence, it is also called the sword dance. We perform Dandiya on Navratris. Why? Nav means 9. Navratri means night. The 9 forms of goddess Durga are worshipped with the Dandiya dance on 9 nights. So let's catch up an enthralling, entertaining and peppy dance performance. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां गाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां गाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे
जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात दिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ में। ढोली रात ढोल हैया माँ बगे बगे ढोली रात ढोल हैया माँ बगे बगे ढोली रात। सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात दिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ में। ढोल बाजे 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 रे, ढोल बाजे 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 रे, भैया माँ बागे बागे ढोल बाजे रे, भैया माँ बागे बागे ढोल बाजे रे। जो मंगल करने वाली और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वे दशरथ नंदन श्री राम की अर्चना करते हैं। सुनते हैं ये चौपाइयाँ और भजन कक्षा चौथी स के विद्यार्थियों से। जय श्री राम। कंज पद कंजा
धर्मी अभिमानी, उसने छल बल दिखलाया, वीर बुझा द शीश कटाकर अपना कुंबा मरवाया, अपनी ही करनी से लंका सोने की जलवाई है. This feeling unites all of us as the audience is filled with people from all walks of life, not just Hindu religion. The spirit and the zeal remains the same throughout the festival and the exact same message. Wisdom is the knowledge of good and evil, strength of to choose between the two. So, what exactly we learn from this beautiful festival? We learn how to conquer our own demons in the form of fear, negativity, and lies. Let's pledge today to choose for ourselves the right over wrong, love over hate, humanity over religion, and peace over violence. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, one of the greatest devotees born in India, talks about receiving the most valuable wealth, the wealth of the name of Lord. So, with their beautiful voice and melodious touch, so peaceful and mesmerizing, we have Kashvi and Samira singing their beautiful devotional song for us. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु मालिक जी मेरे सतगुरु, वस्तु मालिक जी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. Where there is devotional music, God is always around with His gracious presence. So, make your life a devotional hymn. So, here is a beautiful bhajan by students of class 4B. You are listening to DJ Kanta. Enjoy the musical vibes. तुम दुख हरता तुम सुख करता हो, विष्णु के अवतारी। कोई सियापति कहे कोई हरि, तेरी शरण में दुनिया सारी। भक्तों के बना दो बिगड़े काम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम, तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम, तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव
पुरी के राजा हो महाराजा सबके मन के। तुझ में धरती में तुम बसते हो, तुम कण कण में बसते हो, तुम कण कण में। जब नाम तेरा बन जाए काम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति। Dance is your pulse, your heartbeat, your breathing. It's the rhythm of your life. It's the expression in time and movement, in happiness, joy, sadness and envy. So let's enjoy this foot tapping dance performance by the students of class 4C. Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase now. She ain't see the stars in the race. Soon as she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweetie. Go be wifey if she freaky. I love a night, blowin' money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jalebi, baby. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. That you like. कर्म अभी भी जिंदा है, खुद के रावण को देख जरा, कह दे कि हम शर्मिंदा हैं। जिस दिन तू घोर अंधेरे को भीतर से मार भगाएगा, उस दिन सही मायने में ए दोस्त दशहरा आएगा, ए दोस्त दशहरा आएगा। Thank you everyone and I wish you a very happy Dashera.